Very good morning, all of you. Oh, Good morning, sir. good morning. Yeah. Uh, कल we discussed about the types of boundary that can exist between a system and a surrounding. ठीक है? A system and its surrounding, types of different types of boundaries which can exist and what all they can do. Like imaginary boundaries, they can exchange mass as well as energy. ठीक है? And energy exchange can be in any form, that is heat or work. दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, हीट एंड वर्क. दोनों ही फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, क्योंकि देर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन बाउंड ये सिस्टम एंड सराउंडिंग. एवरीथिंग कैन बी एक्सचेंज. नो रिस्ट्रिक्शन. नो रिस्ट्रिक्शन एक्सचेंज. ठीक है. रियल बाउंड्रीज में इफ इट इज मूवेबल बाउंड्री, there is a link between system and surrounding, and system and surrounding can exchange energy in form of work. ठीक है. Movable boundary energy can be exchanged in form of work. No exchange of work energy in form of work. हाँ ठीक है, लिखा है ना. थॉट नहीं, ये लिखना कैसे भूल गया. मूवेबल बाउंड्री में दे कैन एक्सचेंज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क, और वर्क एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं. रिजिड में देयर वोंट बी एनी एक्सचेंज ऑफ वर्क एनर्जी. ठीक है. हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर दैट रिजिड बाउंड्री इज डायथर्मिक और एडियाबेटिक, बट देयर वोंट बी एनी एक्सचेंज ऑफ वर्क एनर्जी. ठीक है. डायथर्मिक exchange in form of heat energy. Adiabatic, no exchange of heat energy. Porous boundary, exchange of mass allowed. बाकी porous जनरली रहेगा तो वो मास को अगर एक्सचेंज कर रहा है, इन जनरल ऐसा रहेगा दैट विल बी एबल टू एक्सचेंज हीट आल्सो. ठीक है. However, depending upon whether that porous boundary is movable or rigid, it will depend whether it is able to uh, transfer energy in form of work or not. ठीक है. That is something which we will have to look depending upon the question. ठीक है ना. पोरस बाउंड्री है और साथ में रिजिड है तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, हीट और मास का ट्रांसफर होगा. ठीक है. सो next thing is, based on different types of boundaries from which a system has been made. ठीक है. The systems has been categorized primarily into three types. Based on type of boundary the system has been categorized as number one,
in system. ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? Made up of imaginary boundary. Imaginary boundary from from at least one side. ठीक है, किसी भी एक साइड से, एक तरफ से, it will be made up of a imaginary boundary. Therefore able to exchange energy as well as energy, therefore able to exchange energy in form of work as well as heat along with transfer of mass. So all type of transfers are possible in open system. It can freely exchange heat, it can freely exchange work, it can freely exchange mass between system and the surrounding. Okay, are we getting this point? Free exchange freely, or we can say exchange everything without restriction. ठीक है, the second system is closed system. Closed system is one which allow क्या हुआ? A system that allows transfer of energy either in form of work or heat or both between
system surrounding. But does not allow transfer of mass. Does not allow transfer of mass between ठीक है. सो क्लोज सिस्टम की बाउंड्रीज कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं? विच ऑल टाइप ऑफ बाउंड्रीज कैन वी हैव इन क्लोज सिस्टम? इट कैन बी मूवेबल बाउंड्री, ठीक है. इट कैन बी रिजिड बाउंड्री एज वेल. डायथर्मिक भी हो सकता है, एडियाबेटिक भी हो सकता है, बस पोरस नहीं होगा, ठीक है. क्लोज्ड सिस्टम में पोरस बाउंड्री पॉसिबल नहीं है. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. Combination of Yes, these, sir. like a rigid and adiabatic boundary, rigid and adiabatic, sorry, rigid and diathermic boundary. तो रिजिड है तो सॉरी वर्क अलाउ नहीं करेगा, बट डायथर्मिक है तो हीट अलाउ करेगा. इट स्टिल क्वालिफाइज एज क्लोज सिस्टम, ठीक है. मूवेबल एडियाबेटिक बाउंड्री तो भी वो रहेगा कैसा? इट विल क्वालिफाई एज क्लोज सिस्टम. मूवेबल एडियाबेटिक. अच्छा, रिजिड भी है और एडियाबेटिक भी है. रिजिड है मतलब वर्क ट्रांसफर नहीं करेगा, और ये क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक है मतलब हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है. तो अगर कोई बाउंड्री रिजिड भी है और एडियाबेटिक भी है, ठीक है ना, तो उस सिनारियो में क्या होगा? ना तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना तो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, वर्क ट्रांसफर हो रहा है. नाउ इट इज लाइक अगर बाउंड्री रियल है, रियल के साथ साथ रिजिड एंड एडियाबेटिक दोनों है, ठीक है ना, तो वो एक तीसरे टाइप ऑफ सिस्टम को क्रिएट करेगा. जनरली रिजिड है मतलब फिजिकल बैरियर विल एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड एडियाबेटिक की वजह से हीट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, और रिजिड की वजह से वर्क नहीं ट्रांसफर हो रहा है, और साथ में रियल है, इसकी वजह से मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है. कि सी अगर पोरस रहेगा, ठीक है ना, तो फिर एडियाबेटिक नहीं हो सकता है. हीट का ट्रांसफर रुक नहीं सकता है. हीट ट्रांसफर विल बी देयर थ्रू द पोरस बाउंड्री, ठीक है ना. अगर मास का फ्लो हो रहा है तो हीट ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग. इट इज ओनली व्हेन मास इज रिस्ट्रिक्टेड, मास का फ्लो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं हीट के फ्लो को, ठीक है. आई मीन अगर मास का फ्लो हो रहा है तो हीट का फ्लो, मतलब अगर गैसियस पार्टिकल्स सबसे आसानी से गैस ही तो डिफ्यूज या डिफ्यूज हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं. सॉलिड्स लिक्विड मुश्किल है. और गैसियस पार्टिकल्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो हीट एनर्जी तो ऑटोमेटिकली निकलती ही रहेगी ना. इट कैन नॉट बी कंस्ट्रेंट, ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्लोज सिस्टम में we can have a combination of like simply movable boundary है, it can be called as closed system. Rigid boundary है, we can call it a closed system provided it is diathermic, ठीक है. और movable है, movable के साथ adiabatic भी है, तभी closed system. हाँ, एक कंडीशन ये होता है अगर रिजिड भी है और एडियाबेटिक भी है, रिजिड भी है और एडियाबेटिक भी है, तब इट क्रिएट्स अ थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम.
ठीक है ना? तो क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीजें अलाउड है, कैसे कैसे बाउंड्रीज हो सकते हैं हमारे? स्क्रीन देखो ना। हाँ, एक स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? अभी लास्ट पेज, एक मिनट। अच्छा अच्छा। डन। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशंस अगर हमारे पास रहते हैं, ये एंड या और भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस में एंड और, इन तीनों कॉम्बिनेशन में वी आर गोइंग टू गेट अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, द लास्ट वन, द थर्ड वन इज isolated system. My definition isolated system is a system which does not exchange mass or energy bracket in any form. ठीक है, that is heat or work with
surrounding are known as isolated system. ठीक है, it will be made up of it is made up of rigid and adiabatic walls or boundaries. Is it okay? Clear to all of us or any problem? Yes, sir. तो ये तीन टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन वाला मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करेगा, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। क्लोज वाला मास नहीं करेगा और एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ वर्क और इन फॉर्म ऑफ हीट और इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है, एनर्जी का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज हो सकता है, therefore it can constitute of either movable diathermic or movable adiabatic or rigid diathermic. ठीक है, isolated system that does not allows exchange of either work or heat energy or mass. ठीक है, that is no exchange between system and surrounding. Clear? No exchange between system and surrounding. No exchange between system and surrounding. Is it okay? Clear? Yes. Fine. There is another categorization of systems that is on the basis of phases. ठीक है, सर हल्का सा ऊपर करो। the system can also be categorized on the basis of phase of the system. See, phase of the system का मतलब क्या है? अभी जनरली हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस को क्या बोलते हो? स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? Yes, sir. बचपन से पढ़ते आए स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स एंड मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। ठीक है, so now I'll be explaining you thermodynamic states थोड़ी देर में। It will be of two types, one microscopic, it could be microscopic
थोड़ा सा पहले बताया भी है गैसियस स्टेट में, एंड मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब सी ये कुछ एक चीज होती है, और ये भी इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या सिंपली स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जब तक हम लोग इस चीज से एक्सपोज नहीं होते हैं तब तक हमारे लाइफ में एक ही स्टेट रहता है। ठीक है, या स्टेट का एक ही मतलब होता है, दैट इज फिजिकल स्टेट। व्हेन वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड विद थर्मोडायनेमिक स्टेट, देन या तो हम फिजिकल स्टेट को फिजिकल स्टेट वर्ड के नाम से प्रोनाउंस करें, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फेज। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? या तो फिजिकल स्टेट को हमेशा फिजिकल स्टेट से रेफर करें, क्योंकि स्टेट्स जो है वो दो चीजों में कॉमन हो गई है। वन थिंग इज थर्मोडायनेमिक स्टेट and another thing is physical state. And when we are now exposed to the concepts of thermodynamics, basic concepts of thermodynamics, we are now exposed to, or we are at least going to be exposed to thermodynamic state in a while, right? Then it becomes very much essential to distinguish between physical state and thermodynamic state. Whenever we are talking about physical state, we have to either clearly recite or specify it as physical state, or if we don't want to use the two words, we can use a single word called phase of matter, yeah, phase of the system. ठीक है, phase of the system indicates solid, liquid and gaseous phases. Clear? So based on the yeah, phases of the system, phase of the system has been categorized into two types. Number one is homogeneous system. A system whose all components are in same phase. That is, all are either solid or solid. मतलब एक सॉलिड है तो सारे सॉलिड है, either solid or liquid. लिक्विड है तो सारे लिक्विड रहेंगे, या फिर गैस है तो सारे गैस रहेंगे। ठीक है, that system will be termed as homogeneous system. Otherwise it will be termed as heterogeneous system. ठीक है, a system whose components are in different phases. ठीक है, they will be known as heterogeneous phase.
मतलब सॉलिड और गैस का रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्टेंट दो अलग अलग फेजेस में है, उससे अब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गैस भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन जाए, फर्क नहीं पड़ता है। इन आइदर केसेस इट इज गोइंग टू बी अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, बट एक गैस दूसरे गैस के साथ रिएक्ट करके तीसरा गैस बना रहा है, इट इज गोइंग टू बी होमोजीनियस सिस्टम, राइट? Yes, sir. Very good. The last thing in this basic definition and terminologies part, we are going to discuss about the thermodynamic state, or what do we mean by thermodynamic state. And then uh, there will be some informations related to those thermodynamic states, and we will discuss about them. There is something called as the thermodynamic state. They are also called as thermodynamic state variables, and the state variables, I mean, thermodynamic variables. Thermodynamic states are also termed as thermodynamic variables, and they could be of two types. They can either be a state variable or they can be path variable. There is one more categorization of those variables. They can either be extrinsic variable or intrinsic variable. Extrinsic or extensive variable or sorry, intrinsic और ये इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, आई थिंक मेरा बोर्ड। Okay, so we can say that reaction between potassium solid and H2O liquid, ये क्या देगा? पोटेशियम को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाट विल इट फॉर्म? एनी आइडिया? Sir, KOH. ठीक है, अभी ये कैसा सिस्टम होगा? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? Heterogeneous. हैज टू बी हेट्रोजीनियस। और ये कैसा होगा? होमोजीनियस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस is reacting with hydrogen gas to produce
ammonia gas, right? What type of system is this? Homogeneous. It is going to be homogeneous system. ठीक है? Why homogeneity of system is, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन हमको चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है? क्योंकि थोड़े टाइम बाद वी विल बी स्टडिंग, मतलब इस चैप्टर के बाद में वी विल बी स्टडिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए होमोजेनिटी ऑफ द सिस्टम इज अ की पैरामीटर. ठीक है? और द सिस्टम मस्ट नॉट बी हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस हो भी सकता है. देयर इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेट्रोजेनिटी जो अवॉइड करते हैं या नहीं होना चाहिए इफ वी हैव इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है? इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिशमेंट के लिए इट इज मैंडेटरी दैट आवर सिस्टम मस्ट नॉट बी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेट्रोजेनिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. ठीक है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेट्रोजेनिटी नहीं होनी चाहिए मतलब सॉलिड्स का बेसिकली फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए उसको. और सॉलिड्स में भी बेसिकली सॉलिड्स कर सकता है वो फॉर्म, प्रेसिपिटेट्स नहीं कर सकता है. ठीक है? क्यों नहीं कर सकता है फॉर्म, वो मैं डिस्कस करूंगा उसके टाइम पर. तो होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी इज समथिंग जिसके जिसके ऊपर हमको अपनी आईज रखनी होती है व्हेनेवर वी आर कंडक्टिंग और व्हेनेवर अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है? उससे कुछ और थर्मोडायनेमिक स्पेशलिटी जो है उस रिएक्शन की, दैट कैन बी गेज्ड. ठीक है? और गेज्ड. ओके. द सर आपने नेक्स्ट 2KOH के ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्वस AQ. ठीक है? एक्वस मतलब पानी के अंदर है बना हुआ. वो लिखा हुआ समझ में नहीं आया. अच्छा अच्छा. वो ऐसे लिखने की बजाय काइंड ऑफ ऐसा. ओके. नेक्स्ट थिंग इज details of thermodynamic सी. थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक बेसिक आइडिया इसका बता देता हूँ. और मुझे लगता है मुझे सारे लोगों ने देखा है, सो आई वुड एक्सप्लेन इट ऑन माई सेल्फ ओनली. अगर मुझे कैरेक्टराइज करना है आपको, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? और एक सर है जिनकी हाइट मे बी 5.5 के आसपास है, उनका वेट सो एंड सो है, कॉम्प्लेक्सन सो एंड सो है, देखने में थोड़े हेल्दी लगते हैं. XYZ फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे डिस्क्राइब कर दोगे, राइट? या फिर मेरी कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप नोटिस करते हो, बहुत रूड हैं, सुबह सुबह जगाते रहते हैं, एंड काइंड ऑफ थिंग्स के थ्रू आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे, राइट? सो आइदर आपको अगर बोला जाए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, मैं मेरे बारे में किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, हाउ आर यू गोइंग टू टेल इट? ऑन द बेसिस ऑफ माय फिजिकल अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ माय कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है? यानी इंटरनल अपीयरेंसेस, इंटरनल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी जो है. सो किसी भी चीज को दुनिया में डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चाहिए? फिजिकल पैरामीटर्स और फिजिकल अपीयरेंसेस, पैरामीटर्स और एंड और ये
physical parameters, characteristics, internal characteristics, ठीक है, physical parameters और physical parameters, हाँ। सो बेसिकली दो चीजें हमको चाहिए होती हैं, दो टाइप से हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइदर आई मीन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पैरामीटर और इन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, उस सिस्टम को मुझे डिस्क्राइब करना हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स व्हिच वी हैव इन आवर हैंड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। से एक गैस पड़ा हुआ है, मतलब एक सिलेंडर में गैस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए, सो दैट वी शुड मीन व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इन द सिलेंडर, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, ये सारी चीजें इंडिकेट कराने के लिए, और there are certain physical parameters which are associated with that gas. उन फिजिकल पैरामीटर्स को जब हम एक्सप्लेन करेंगे या असाइन करेंगे कुछ वैल्यूज जो कि उस गैस के साथ एसोसिएटेड होगी, that particular combination is going to be termed as the thermodynamic state of that gas, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब ऐसा होता है कि ये सारे वेरिएबल्स जो होते हैं ना, पैरामीटर्स, के थ्रू हम जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम को रिलेट करते हैं, दे आर मोस्टली ये रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एंड चूंकि वो रिलेटेड होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम जस्ट स्टेट वेरिएबल, वी आल्सो कॉल देम, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स को सिर्फ वेरिएबल्स ना बोल करके उनको फंक्शंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप और फंक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए या एक्सक्लूसिवली मेंशन करने के लिए, we are going to have multiple physical parameters or physical variables. Those variables are known as thermodynamic variables, and as those variables are interdependent, ठीक है, we are going to see that they are going to be interdependent. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा वाला तीसरे के ऊपर करेगा, therefore we also call them thermodynamic state functions, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस भी उनको बोलते हैं। और फिजिकल वेरिएबल्स जो सारे के सारे होते हैं, वो सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं। देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स व्हिच आर पाथ वेरिएबल्स आल्सो, ठीक है। ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल वेरिएबल्स जो सिस्टम के स्टेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए या सिस्टम के स्टेट के थ्रू डिफाइंड होते हैं, they are not always only state variables, there can be path variables also, so we are going to discuss about those things, ठीक है ना। Let me put this statement like this. In order to describe system, we require certain physical parameters
order to describe a system, we require certain physical parameters. These physical parameters are also known as thermodynamic variables. Okay. As these thermodynamic variables are interdependent, hence also known as thermodynamic functions. So the physical parameters defining or uniquely defining state of a system, ठीक है, or describing a system at a particular instance is going to be termed as thermodynamic variables और physical parameters को हम लोग thermodynamic variables बोलते हैं. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को ही थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी बोलते हैं. अब अगली चीज थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, ठीक है. सो अ सेट सॉरी सी 4 या 5 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर एक्चुअली एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, तो थोड़ा सा समझाने में मुझे आसानी रहेगी. एग्जांपल्स कुड बी प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, volume of the system, number of moles or number count of the constituent particles. Apart from this, we can have speed of individual particles, mass of individual particle, mass of individual constituent particles, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मास के अलावा क्या हो सकता है, देयर आर अदर्स आल्सो, धीरे धीरे पता चलेगा. इंटरनल एनर्जी, ठीक है. सो इसके अलावा there is heat content which is going to be there, heat content of the system, this is going to be also termed as
enthalpy, और ये एक कंडीशन में उसको इंथैल्पी बोलते हैं, दूसरे कंडीशन में उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ही अभी रहने देते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हैं इंथैल्पी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहते हैं तो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो दीज आर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, जिसको कि अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा फिजिकल सिस्टम जो है उसका एक पर्टिकुलर स्टेट जो है दैट विल बिकम डिफाइंड, ठीक है। सो मतलब ये हुआ कि प्रेशर की एक वैल्यू असाइन कर दी, टेम्परेचर को एक वैल्यू असाइन कर दी, वॉल्यूम को एक वैल्यू असाइन कर दी, नंबर ऑफ मोल्स को एक वॉल्यूम वैल्यू असाइन कर दी, स्पीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जरूरी नहीं है। बेसिकली ये चारों जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, ये इनके साथ भी डिपेंडेंसी है। किस तरह की डिपेंडेंसी है? वी हैव सीन सम ऑफ देम इन gaseous state, some of them we are going to see in thermodynamics, I mean in this chapter, ठीक है। Now if we have a set of these four parameters being defined or having assigned a value, generally किसी भी एक gaseous system को purposefully and specifically define करने के लिए we need these four parameters। ये चार parameters अगर हमारे पास हैं, that means we can know or we can be ascertained about most of the properties of the that particular gas, ठीक है। So a set of value for all these four parameters will create one thermodynamic state of any gaseous system, ठीक है। One parameter or one value for each of these variables being assigned for a gaseous system, ठीक है, और related to a gaseous system। किसी भी एक gaseous system के लिए ये चारों variables की values को अगर मैं define कर देता हूँ, fixed value assign कर देता हूँ, वो जो set बनेगा such as pressure is equal to 2 atm, temperature is equal to 300 Kelvin, volume is equal to 2 liter, number of moles is equal to 5। ये जो सिस्टम बना या ये जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक डायनेमिक स्टेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच वेरिएबल्स जिनसे कि हम यूनिकली एक सिस्टम को डिफाइन, सिस्टम के सारे पैरामीटर्स को डिफाइन कर पाते हो, यूनिकली डिफाइन कर पाते हो। जब ऐसी वैल्यूज हम अपने पैरामीटर्स को दे देते हैं, वी कॉल दैट सेट ऑफ पैरामीटर्स और दैट set of values as one to be representative of one thermodynamic state, ठीक है। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है? दे ऑल आर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ऑल ऑफ देम आर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो हम रियलाइज कर पाए, फील कर पाए, या जिनको हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी फिजिकल टेक्निक से हम उनको मेजर कर पाएंगे। देयरफॉर दे आर मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। बल्क रिप्रेजेंटेटर, मैक्रोस्कोपिक या बल्क रिप्रेजेंटेटर, मैक्रोस्कोपिक और बल्क रिप्रेजेंटेटर, ठीक है। सो ठीक है, कल के दिन में फिर मैं इस पे के ऊपर आगे डिस्कशन करता हूँ, या फिर मे बी शाम को, बट नो कमिटमेंट्स एज ऑफ नाउ, विल सी एंड अकॉर्डिंगली अगर रहा ये तो फिर मैं बुला लूंगा, ठीक है। Okay, let us disperse as of now and Thank you. we'll meet up, okay?
बाय सर, थैंक यू सर। बाय। चैप्टर और HSC बुक या NCERT से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है सारे लोग? यस सर। यस यस सर। सर। ओके।